Welcome to Cozy Classes. Now we read the lesson number 3, Making of Global World, class 10th. Globalization, about 50 years, तेजी से सुना जा रहा है. ग्लोबलाइजेशन की हिंदी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण होती है. इट मीन्स के द linked our economy with the world economy. Globalization. The globalization often refers to economic system that emerged since last 50 years or so. From ancient time, traveler traders, priests and pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment or to escape persecution. आज ग्लोबलाइजेशन हम बहुत सुनते हैं, तो क्या पहले लिंक नहीं होता था देशों का? तो एशियन टाइम में भी कंट्रीज लिंक्ड थे. संसार के देश आपस में व्यापार के थ्रू, यात्रियों के थ्रू, धार्मिक जो प्रीस्ट होते हैं या जो मिशनरीज होते हैं उनके थ्रू सामान का, विचारों का, धर्म का एक्सचेंज होता था. पहले से चला आ रहा है. They carried goods, money, values, skill, ideas, invention and even germs and disease also. एग्जाम्पल जो इंडिया में कौड़ी चलती है, जो एक करेंसी के रूप में used for currency in India and Maldives have been found in China and foreign. दूर दूर तक पाई जाती है. Making of global world has a long history. ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन 40-50 सालों से बहुत तेजी के साथ ग्लोबलाइजेशन हुआ है. इट इज इम्पोर्टेंट. तो ऐसा क्यों हुआ? फॉर ट्रेड and migration of the people in search of work, the movement of capital and much else. So, free flow of capital, labor and goods is called globalization. In this lesson, we read the 4 phases of globalization. Number 1, global interconnection in the pre-modern world. मॉडर्न वर्ल्ड से पहले कनेक्शन था. सेकंड, द वर्ल्ड इन 19th century. थर्ड, इंटर-वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी. एंड फोर्थ, rebuilding a world economy. We read first of all global interconnection in the pre-modern world. Silk Road. The countries were linked with Silk Road in the world. The name Silk Route points to the importance of the westbound Chinese silk cargoes along with route. चाइना के साथ देशों के जो संबंध थे, उनमें सिल्क एक मेन कमोडिटी था, इसलिए इस रूट को सिल्क रूट कहते हैं, जिसमें 3 कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में इंटरलिंक थे. There were several land and a sea knitting together vast region of Asia, Europe and North Africa. Chinese pottery and textile spices from India and Southeast Asia traveled on the same route. रेशम के साथ साथ pottery, साड़ी और सूती कपड़ा ये पूरी दुनिया में. In return, इसके बदले में precious metal, gold and silver flowed from Europe to Asia. व्यापार क्योंकि
प्रीशियस मेटल में होता था, मेनली गोल्ड और सिल्वर में, इसलिए यूरोप से ये प्रीशियस मेटल एशिया में आने लगे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड के साथ धर्म, कल्चर ये भी साथ आया, कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आए, मुस्लिम प्रीचर्स आए, बुद्धिस्ट भारत से बाहर गए, ये अपने साथ साथ अपने विचारों को भी लेकर गए। आप देख रहे हैं पिक्चर में एंशिएंट सिल्क रोड, जो एक काफिला होता था बहुत सारे लोगों का एक साथ चलना, ताकि जो अटैक हैं या जो लुटेरे हैं उनसे बचा जा सके। दिस इज द सिल्क रोड्स, एंशिएंट टाइम के वो रोड्स, लैंड रूट और सी रूट्स बोथ। Now we see the how food travel in the world. Yeah, what is the role of food in the globalization of the world? Food offers many examples of long distance cultural exchange. New crops traveled to the new land. जैसे जैसे इन्वेंशन हुई वैसे वैसे एक देश की क्रॉप्स दूसरे देशों में जाने लगी। For example, noodles traveled west from China and became spaghetti in Europe. नूडल्स पूरी दुनिया में हैं, इंडिया में भी हैं, और यूरोप में जाके वो स्पैघेटी बन गए। अरब ट्रेवल्स टुक पास्ता टू सिसिली इन इटली। पास्ता इटली से निकलकर अरब कंट्रीज में फैला। Hence, there is evidence of long-distance cultural contact in pre-modern world. Crops such as potato, soya, groundnut, maize, tomato, chilies, sweet potato were only introduced in Europe after Columbus discovered America. ये शायद ना हो पाता अगर अमेरिका की खोज ना हो पाती। पोटैटो पोर्चुगल की फसल वो धीरे धीरे अमेरिका या अन्य यूरोपीय देशों में फैली। आयरिश फेमाइन कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ पोटैटो क्रॉप्स। इतनी इम्पोर्टेंस थी पोटैटो की आयरलैंड में कि इसकी वजह से, इसकी फसल ना होने की वजह से वहाँ फेमाइन ही फैल गया। आप एक्सचेंज करते हुए देख रहे हैं पिक्चर में गुड्स को। दीज आर द पिक्चर ऑफ आयरिश फेमाइन, आयरलैंड की लोकेशन, एंड पोटैटो जो जिसकी वजह से फसल खराब हुई। नाउ वी सी द कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। यूरोपियंस लोग बाहर आए, उन्होंने विजय करने शुरू करी, और किस तरह डिजीज भी उनके साथ आई। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उस यूरोपियंस जो हैं वो एशिया और अमेरिका के लिए निकल लिए। The Indian subcontinent was central to those flows and a crucial point of their network. इंडिया की सिचुएशन, लोकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये सेंटर में पड़ता था ईस्ट और वेस्ट के। From the discovery of America in 16th century, crops and minerals began to transform trade and lives everywhere. Precious metal, silver, from mine located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. जब प्रीसियस मेटल भारी मात्रा में मिलने लगे तो ये ट्रेड और भी ज़्यादा फास्ट हो गया एशिया के साथ। The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by mid-16th century. शुरू में जो colonization शुरू हुआ वो पोर्चुगीज और स्पेनिश ने किया। The most powerful weapon of Spanish conquer was not conventional military weapon. It was the germs such as those of smallpox that they carried on their person, which was a deadly killer. Because of their long isolation, America's original inhabitant had no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox, in a particular, proved a deadly killer. जब यूरोपियंस लोग वहाँ गए तो वहाँ के जो मूल लोग थे उनमें इम्यूनिटी नहीं थी नए नए जर्म्स की। तो जब यूरोपियन लोग वहाँ गए तो अपने जर्म्स भी लेके गए, और वो जिससे वो लोग
वहाँ डिजीज़ फैल गई और वो बहुत डेडली किलर साबित हुई। तो ये कहा जाता है कि स्पेन ने केवल मिलिट्री के बेस पर या वेपन के बेस पर ही कंक्वेस्ट नहीं की, बल्कि डिजीज़ के थ्रू भी की। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly. Religious conflict were common. Religious dissenters were persecuted. धार्मिक झगड़े होने लगे, क्राउडेड बहुत ज़्यादा हो गए सिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल गया, जिसकी वजह से माइग्रेशन शुरू हुआ। Till 18th century, China and India were among the world's richest countries. As China's role declined, America gradually moved to the center of the world trade. जैसे जैसे चाइना डिक्लाइन हुआ, वैसे वैसे वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका का रोल बढ़ता चला गया। We see the Spain and Portuguese colonies in America and a picture of smallpox in America. Now we see the world in the 19th century. In 19th century, a world economy takes shape. The world changed profoundly in 19th century. Economic, political, social, cultural and technological factors interacted. इस समय बहुत से पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे। 3 types of movement or flows within international economic exchange: flow of trade, flow of labor and flow of capital. ये तेज हो गया। All 3 flows were closely interlinked and affected people's life more deeply now than before. तेजी के साथ interlink हुआ। A world economy take place at this time. Main event was corn laws. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ा वो कॉर्न लॉस का पड़ा। Due to population growth and food shortage, there was price rise up. Shortage of food was in England. Demand for food grain, the price rise up very high. Under pressure from landed group, the government also restricted the import of corn. पहले से कॉर्न इंपोर्ट होता था, लेकिन बड़े बड़े लोगों के दबाव से, ज़्यादा इनकम की वजह से सरकार के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो इंपोर्ट ऑफ कॉर्न को रोक दे। The laws allowing the government to do this were commonly known as corn laws. But after the corn laws were scrapped, food became cheap. लेकिन ज़्यादा दिन ये नहीं चला, फिर से इंपोर्ट करना पड़ा कॉर्न को, और उसके बाद ब्रिटेन की स्थिति खराब हो गई। वो जो फूड था वो चीप हो गया, सस्ता हो गया, और ब्रिटिश लैंड ओनर कुड नॉट कम्पीट विद इम्पोर्ट, जिसकी वजह से जो वहाँ की लेबर थी वो माइग्रेट कर गई शहरों की तरफ वर्क के लिए, काम के लिए। ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस समय एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन कर रहे थे। किस लिए? टू सप्लाई द फूड फॉर ब्रिटिश कंजम्पशन। रेलवेज वर एस्टेब्लिश्ड टू कनेक्ट एग्रीकल्चर एरियाज विद सीपोर्ट, ताकि समय कम लगे, पैसा खर्च कम हो, और रेलवे के थ्रू दूर दूर तक पहुंचाया जा सके अनाज को या फूड स्टफ्स को। To perform all these activities, there was large-scale migration of labor to America, Australia, added to globalization. इसके लिए लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ को बहुत माइग्रेट हुए और ग्लोबलाइजेशन तेज हुआ। By 1890, a global agriculture economy had taken shape with complex change in labor movement pattern, capital flow, ecologies, and the technology. All this was a consequence of globalization. In India, especially in Punjab, dramatic changes occurred. British government built a network of canal to grow wheat and cotton for export because it was the need for British textiles mill. व्यापार बहुत बढ़ गया। Between 1820 to 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times.
out of which nearly 60% was primary goods, primary products. भारत में भी तेजी से फ्लो हुआ. Now we read the role of technology in globalization. इस समय तेजी के साथ इन्वेंशन हो रही थी. रेलवे, स्टीमशिप्स एंड टेलीग्राफ्स were important inventions. Colonialization stimulated new investment. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुकी थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बेचा जा सके दूसरे देशों में और रॉ मटेरियल सस्ते से सस्ता आ सके. इसके लिए फास्टर रेलवे, लाइटर वैगन एंड लार्जर शिप्स हेल्प इन फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स. रेफ्रिजरेटेड शिप्स enabled the transport of food over the long distance. अब तो खराब भी नहीं होता था, दूर दूर तक रेफ्रिजरेटेड शिप जो है वो फूड को पहुंचा रहे थे. Animal were slaughtered for food in America, Australia, New Zealand and transported to Europe as frozen meat. तो वहाँ पे भी फूड की समस्या खत्म होने लगी. People had rich diet with potato, bread, meat, butter and eggs. Better living condition promoted social peace, but also supported imperialism abroad. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ही imperialism को आगे बढ़ाया. Now we see the colonialism in 19th century. We see the map of Africa, division of Africa by European powers. हमें यूरोप में बैठे बैठे ही जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अफ्रीका को बांट लिया, कागज पे बांट दिया. आप देख रहे हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोर्चुगल, बेल्जियम, स्पेन एंड अदर. जैसे जैसे ट्रेड फ्लोरिश्ड हुआ, मार्केट एक्सपेंडेड ग्लोबली बट नॉट प्रॉस्पेरिटी. ट्रेड बढ़ रहा था, मार्केट बढ़ रही थी, लेकिन प्रॉस्पेरिटी उतनी नहीं थी. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप आल्सो मीन टू लॉस फ्रीडम एंड लिवलीहुड. कॉलोनियलाइजेशन ने लोगों की फ्रीडम खत्म कर दी थी, लिवलीहुड को बदल दिया था. Colonization brought about huge social, economic, and ecological changes. In 1885, European powers met in Berlin to complete the carving of Africa, among them, as you see. Britain, France, Germany, Belgium, even also US became colonial power. Now we see the rinderpest or the cattle plague. In 1890, in Africa, a fast-spreading disease had a terrifying impact on the people's livelihood. In late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and mineral, but there was a shortage of labor willing to work for wages. ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल सस्ता आए, ज़्यादा से ज़्यादा बाजार मिले, इन सब चीज़ों के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की गई. अफ्रीका एक बड़ा रिच रिसोर्सफुल एरिया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरोपियन कंट्रीज वहाँ आए इनकम के लिए, लेकिन वहाँ लेबर की कमी थी. Employers used many methods to recruit and retain labor in plantation. बाहर से वो लोग लेबर को रिक्रूट कर करके लाने लगे प्लांटेशंस में काम करने के लिए. ऐसे में एक बहुत ही डेंजरस बीमारी रिंडरपेस्ट ये अफ्रीका पहुंची. कैसे पहुंची? In 1880, it was carried by infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. ईस्ट अफ्रीका में एक इरिट्रिया नाम के क्षेत्र को जीतने के लिए जो इटालियन सोल्जर्स वहाँ आए, उनको जो फूड अवेलेबल कराया जाता था वो एशिया से था, जिसकी वजह से कुछ जर्म्स वहाँ पर आए और जिसकी वजह से रिंडरपेस्ट फैली और अफ्रीका में. और ह्यूज लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड, क्योंकि उनकी जो जीवनचर्या थी इसी पर ज़्यादा चलती थी और ये उनके लिए बहुत डेंजरस साबित हुई. नाउ वी सी इंडियन इंडेंचर्ड लेबर. भारत से भी लेबर गई काम करने के लिए. ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इंडियन इंडेंचर्ड लेबर इन साउथ अफ्रीका. इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया illustrates two sides of word in 19th century. दो साइड इस माइग्रेशन ने दो साइड इसकी है. एक है फास्टर ग्रोथ और एक है उनकी गरीबी, मिजरी. In 19th century,
Indian and Chinese laborer went to work on mines, plantations, and road, railway construction project around the world. In India, indentured labor came from UP, MP, Bihar, and Tamil Nadu, where were areas where there was extreme poverty and no livelihood. They were forced to migrate out. उनको काम के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ा, जैसे फिजी, श्रीलंका, मॉरिशस या कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स में जो कि कोलंबस ने शुरू में गए थे तो उन्होंने कहा कि इंडिया आ गया, लेकिन बाद में वो वेस्ट इंडीज़ के नाम से फेमस हुआ। और वहाँ पर जो लोग रहते थे, कुछ लोग तो सम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर जैसे शिव नारायण, चंद्रपॉल एंड राम नरेश सरन seems like Indian, but they lived in West Indies. वहाँ इंडिया के जाने से, इंडिया और कैरिबियन लोगों से के मिलने से जो फ्यूजन कल्चर या कल्चरल चेंज आया, वो उसमें दो बड़े एग्जाम्पल हैं, चटनी म्यूजिक और होसे। इंडेंचर्ड लेबर वाज एबोलिश्ड इन 1921, जब भारत में नेशनल लीडर्स ने इसके लिए मूवमेंट चलाए, तब ये खत्म कर दी गई। इसमें आप देख रहे हैं कि माइग्रेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर इन 1832 1917, भारी मात्रा में लोग बाहर गए। कहाँ कहाँ? ब्रिटिश कॉलोनीज, आप ऑरेंज कलर जो देख रहे हैं वो ब्रिटिश कॉलोनीज में गए, रेड फ्रेंच कॉलोनीज हैं और पर्पल डच कॉलोनीज हैं, जिसमें भारत से इंडेंचर्ड लेबर भारी मात्रा में गई। Now we see the Indian incorporation and colonialism. भारत के कौन लोग थे जिन्होंने ट्रेड में अपना बड़ा रोल प्ले किया? Growing food and other crops for the world market required capital. समय पैसा चाहिए था। Many group of bankers and traders like Shikaripuri Shroff and Nattukote Chettiars. Chettiars बड़ा समूह था जो फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन द सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, फाइनेंस का काम करता था। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। भारत से भी बड़ी मात्रा में लोग अफ्रीका गए, इंडियन ट्रेड के साथ करना शुरू किया। अब देखते हैं इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम कैसे इंटरलिंक हुआ। फाइन कॉटन प्रोड्यूस इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, खासतौर से ब्रिटेन के लिए कॉटन एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर बिगेन टू एक्सपैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो और तेज हो गया ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल्स का काम। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वो जो इंपोर्ट हो रहा है भारत से उसको बंद किया जाए, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री हैं उसको बूस्ट मिल सके। Hence, fine Indian cotton began to decline. तभी से भारतीय कॉटन टेक्सटाइल का जो व्यापार था वो डिक्लाइन करता चला गया, धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन। भारत के जो बाजार थे वो इंग्लैंड के माल से भर गए और हमारा जो फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स था उसको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ा। एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन रेपिडली, इसीलिए हमारा जो एक्सपोर्ट था वो तेजी से गिरा। बट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आउटसाइड इंक्रीज्ड वेरी फास्ट, लेकिन रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था वो तेजी से बढ़ने लगा। ये रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? इंग्लैंड। इसी समय ओपियम कल्टिवेटेड इन इंडिया वाज सोल्ड टू चाइना इन रिटर्न फॉर टी एंड अदर गुड्स, जिसको ट्रायंगुलर ट्रेड भी कहते हैं। ओपियम का जो ट्रायंगुलर ट्रेड था वो चाइना, इंग्लैंड और इंडिया के बीच था। इंग्लैंड में टी की बहुत खपत होती थी, इसलिए चाइना से टी जाता था, जिसके लिए भारी मात्रा में सिल्वर चाइना को देना पड़ता था। सो इंग्लैंड ने इंडिया में ओपियम की खेती करवाई और यहाँ से चाइना को एक्सपोर्ट किया और चाइना से टी अपने लिए लिया। इसी को ट्रायंगुलर ट्रेड कहते हैं। ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया।
India played a crucial role in the 19th century in world economy. You see the triangular trade within the England, China, and India. Now we see the interwar economy, third phase. Now, First World War was started. Now we see the transformations during the war. The World War First was fought between the two power blocks in August 1914. Two power blocks were Allies power and Central powers. Allies powers like Britain, France, Russia, and later joined by the US. Central powers were Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Empire, called Turkey. You see the map. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर क्योंकि उसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन था. द स्केल ऑफ डेथ वॉज सो हाई दैट हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर द वॉर. During the war, industries were restructured to produce war related goods. Entire societies were also reorganized for war effort. At the war's end, the US and its citizens owned more overseas assets that foreign government and citizen owned in the US. वॉर के समाप्त होने के बाद यूएस जो एक बड़ी पावर के रूप में उभर कर सामने आया. वी सी द पोस्ट वॉर रिकवरी. वो जो क्राइसिस आया उसको किस तरह से अमेरिका ने दूर किया. ब्रिटेन विच वॉज द सुपर पावर बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर faced prolonged crisis. After the war, it became difficult for the recapture its earlier position. ब्रिटेन लगातार डिक्लाइन करता चला गया और समाप्त होती चली गई. और वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में ग्रो किया. द वॉर हैड led to an economic boom which led to large increase in demand, production and employment. When the boom ended, production contracted, unemployment increased. वर्ल्ड वॉर के समय तो डिमांड बहुत चीज़ों की बढ़ रही थी. वॉर खत्म हो गई तो जो चीज़ों की डिमांड वॉर के समय हो रही थी वो खत्म हो गई और इस तरह एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे कम हो गया. मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज वर ऑल्सो इन क्राइसिस. जब डिमांड बढ़ रही थी, जहाँ पे बढ़ रही थी जैसे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये वॉर के समय बहुत प्रोडक्शन इनका बढ़ गया था. लेकिन वॉर के बाद इनका प्राइस घटने लगा. फूड एंड अदर गुड्स प्राइस घटने लगे. रूरल इनकम डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट. किसानों की आय बहुत कम हो गई और इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई. So after World War, the rise of mass production and consumption. In the US, recovery was quicker. सब देशों में सबसे ज़्यादा जो रिकवरी थी इकोनॉमी की वो यूएस की थी. It resumed strong growth in early 1920s. The main feature of the US economy was mass production. For example, car manufacturer Henry Ford, the T model Ford was the world's first mass produced car. इन यूएस की इकोनॉमी को थोड़ा मजबूत करने में इसने बड़ा रोल प्ले किया. These cars were widely copied in the Europe and soon spread 1920 with low cost. With prices the engineered goods falling, the demand for different machines for domestic use increased and boomed 1923. In 1920s, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before. उसके बाद लगातार 1929-30 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था जैसा पहले कभी नहीं था. We read the Great Depression, economic crisis in the world. It began around 1929 and lasted till 30 with decline in production, employment, income and trade. What is the Great Depression? The loss of lack of production, lack of employment, lack of income and trade. It was caused by a combination of several. What are the factors? Several factors.
लाइक एज एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड ए प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जनधन की हानि हुई, लोग बहुत सारे ख़त्म हुए, तो जो कंज्यूमर पावर थी वो भी कम हो गई और पैसे भी कम हो गए, लोग खरीद भी नहीं पा रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ता चला गया. In mid 1920s, many countries had financed their investment through loan from the US. इसलिए बहुत से देशों ने US से लोन लिया. The withdrawal of US loan affected much of the rest of the world through the indifferent ways. लेकिन इतना इकोनॉमिक क्राइसिस था कि वो लोन को रिपे नहीं कर पा रहे थे. The US also affected so bank called bank loan. US के बैंक already affected थे, इसलिए उन्होंने लोन वापस मांगा, लेकिन लोन वापस नहीं मिला तो bankrupt हो गए. The farmers could not sell their harvest. Households were ruined and business collapsed. लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, इंडस्ट्री शट डाउन हो गई, हार्वेस्ट बेच नहीं पा रहे थे. So the 1933 banks and closed and companies had collapsed. By 1935, economic recovery was underway, but wider impacts were felt on society. 35 से थोड़ी रिकवरी तो शुरू हुई, लेकिन इसके सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर और इंटरनेशनल रिलेशन पर गहरा प्रभाव पड़ा. See the impact of Great Depression on India. भारत की क्या स्थिति थी? This crisis affected India badly. इंडिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ा. In 19th century, India was an exporter of agricultural goods and importer of British goods. Export और import nearly halved by 1934. हम एक्सपोर्टर भी थे, इम्पोर्टर भी थे, लेकिन 34 तक आते आते स्थिति बहुत खराब हो गई थी. Peasant and farmers suffered more than urban dwellers. रूरल में ये और ज्यादा खराब थी स्थिति. क्रॉप्स प्राइसेस फेल शार्पली, डिक्लाइन कर रहे थे, मूल्य नहीं मिल रहा था फसलों का. रेवेन्यू वाज डिमांडेड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट रेगुलर, लीडिंग टू लैक ऑफ मनी इन कंट्री साइड. गांव में स्थिति ज्यादा खराब हुई और शॉर्टेज हुई धन की. इंडियन पीजेंट्स वर इंडेंचर्ड, मजबूरी में इंडेंचर्ड लेबर लोग पहचाने हुए बेसिस पर बाहर के देशों में. दे लॉस्ट देयर सेविंग, और इसी समय उनको अपनी सेविंग भी छोड़नी पड़ी, अपनी लैंड भी खोनी पड़ी, एंड ज्वेलरी एंड प्रीसियस मेटल ऑल्सो. इन सच कंडीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड द साल्ट मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी. In urban India, the people of middle class salaried and landowners received rent, and government extended the tariff protection to industries under pressure of nationalists. शहरों में क्योंकि मिडिल क्लास सैलरीड होती थी और थोड़ा सा सरकार ने भी और रेंट ज़्यादा मिलता था लोगों को, सरकार ने भी थोड़ा सा टैरिफ प्रोटेक्शन, थोड़ा सा रिलीफ दिया था, तो वहाँ थोड़ी सी अभी नॉर्मल थी. We see now the rebuilding a world economy. The post-war era. We see the Second World War. The Second World War was fought from 1939 to 45 between Axis power and Allied power. In map, you see the Axis powers. आप एक्सिस पावर को देख सकते हैं, जर्मनी, जापान और इटली, और एलाइड पावर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और बाद में यूएस. इन दिस वॉर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा डेंजरस रही. Cities were destroyed by bombing and artillery attack. Hiroshima और नागासाकी को आप सब जानते हैं. Nuclear bombing. This is shaped post-war reconstruction. इसके लिए दो सबसे बड़े impact थे. The first was US emergence and dominant economic power in the Western world, and second, dominance of Soviet Union. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ जिनका पूरे संसार की इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर गहरा प्रभाव पड़ा, और वो था एमर्जेंस ऑफ यूएस एंड एमर्जेंस ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर. देयर वर टू की लेसन फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस. दो बड़े लेसन इस समय तक देशों ले चुके थे. व्हाट वाज? नंबर वन, मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजप्शन. मास प्रोडक्शन, मास कंजप्शन के बिना ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता.
However, market alone could not guarantee full employment. So, for providing employment and a stable economy, intervention by government were necessary. कंजप्शन को लोग अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा ताकि वो इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा हेल्प करे. Second is, goal of full employment could not be achieved if government had power to control flows of goods, capital and labor. गवर्नमेंट अकेले कंट्रोल करके इस समस्या को नहीं सुलझा सकती, इसलिए now we see the destruction of Second World War in Europe, in Stalingrad, in USSR and Japan, जहाँ heavy bombing, nuclear bombing. Now we see the post-war settlement and Bretton Woods Institution. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी को इस थोड़ा मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो वो थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम. The post-war international economic system had main objective to preserve stability. What was the objectives of Bretton Woods institution? To preserve stability and employment in industrial world, and to give the power to economy in the world. Its framework was agreed upon the UN Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. USA के हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम के प्लेस पर एक मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में. इस कॉन्फ्रेंस से क्या हुआ? द कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF जिसको बोलते हैं, किस लिए? टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिट्स रिगार्डिंग इट्स मेंबर नेशन. ये पूरे मॉनिटरी करेगी इकोनॉमिक कंडीशन को देशों की. और जो सेकंड था वर्ल्ड बैंक वाज आल्सो सेट अप टू फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन. ये उन सबको हेल्प करेगा, उन सब की इकोनॉमी को हेल्प करेगा जो वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, एंड डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स इन पोस्ट वॉर पीरियड. बोथ दीज आर रेफर्ड, ये दोनों वर्ल्ड बैंक, IMF, बोथ दीज आर रेफर्ड एज ए ब्रेटन वुड्स ट्विंस and Bretton Woods system also. These institutions are largely controlled by Western industrial power, especially US. It based on fixed exchange rates. We see the World Bank, headquarters of IMF. Now we see the early post-war years and decolonialization. Second World War के बाद the Bretton Woods system brought an era of growth in trade and income for Western countries and Japan. Economy थोड़ी boost हुई. Developing countries were a hurry to catch up with the advanced industrial countries. लेकिन अभी डेवलपिंग जो कंट्रीज थे, डेवलप्ड कंट्रीज तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, लेकिन डेवलपिंग जो कंट्रीज थे वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे. Decolonization process started after Second World War, but they were poor and lacked resources. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट कंट्रीज की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन होने लगा. बट ये जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, ये अभी क्योंकि सभी किसी ना किसी कॉलोनियल स्टेट से निकले थे, इसलिए ये सभी रिसोर्सेज इनके बहुत पुअर थे, और लिटरेसी रेट कम था, और इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, इंडस्ट्री कम थी, एंड लो इनकम ग्रुप में थे. द IMF एंड वर्ल्ड बैंक were designed to meet financial needs of industrial countries. अभी भी IMF और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज को. सो डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द टिल 1960s तक कोई खास हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिल रही थी. सो all the developing countries organized themselves as a group of called G77 and new international economic order. It means new international ecosystem which would give them real control over their natural resources, more development, fair prices of raw material and access to market of developed countries. ताकि जो डेवलप कंट्रीज को लाभ हो रहा है वो डेवलपिंग को भी हो सके.
Now we see the end of Bretton Woods and the beginning of globalization. लेकिन कुछ समय बाद ब्रेटन वुड्स भी समाप्त हो गया. Despite stability and rapid growth, not all well in the post-war world. सब कुछ सही नहीं चल रहा था. US dollar could not maintain its value in relation to gold, जैसा कि फिक्स एक्सचेंज में हुआ था. तो US डॉलर जो था वो सबसे बड़ी सबसे पावरफुल करेंसी था दुनिया में, लेकिन वो उतना मेंटेन नहीं कर पा रहा था गोल्ड के तुलना में. It led to collapse of system of fixed exchange rates. और फिर से and the introduction of the system of floating exchange rates. फिक्स एक्सचेंज रेट्स खत्म हो गया और अब दूसरा सिस्टम शुरू हुआ, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स. यानी समय समय पर डॉलर की तुलना में जो करेंसी हैं वो फ्लोटिंग होती रहेंगी, उनकी वैल्यू फ्लोटिंग होती रहेगी. डेवलपिंग कंट्रीज वर फोर्स्ड टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न बैंक. This led to debt crisis among them, especially Africa and Latin America. इन लोगों से लोन लेने की कोशिश की लेकिन वो रिपे नहीं कर पा रहे थे, जिससे अफ्रीका और लैटिन by unemployment crisis in mid 1970s to 1990s. अब ये चली रही थी कि MNC shifted operation to low regulation countries. MNC का आना शुरू हुआ खासतौर से चाइना में. China had been cut off from world economy. 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुई थी, जिससे वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था और उसने वर्ल्ड इकोनॉमी से अपने आप को कट ऑफ कर लिया था. बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कोलैप्स ऑफ द USSR ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक टू द वर्ल्ड इकोनॉमी. लेकिन 1991 में जब USSR कोलैप्स हो गया तो फिर से बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़े. Due to low wages in China, the MNC made investment in manufacturing items like TV, mobile phone, and toys, etc. क्योंकि उनको यहाँ ज़्यादा लाभ हो रहा था. After some time, in India also, in last 2 decades, the world's economic geography has been transformed completely as countries such as India, China, and Brazil have undergone rapid economic transformation. उसी दौर में ग्लोबल पीक पर. So thank you to watching the Cozy classes. उम्मीद है कि आपको ठीक लगी.